Hello students. So we were discussing role of auxin. Auxin is growth promoter. Supraoptimal level is growth retarder. Auxin promotes cell division but conditionally. Wounded cells, secondary growth. Right? Wounded cells related हमने बात की. In stem cuttings, in nurseries, during vegetative reproduction, stem cuttings are dipped in auxin, which will initiate early root formation. Right? Tissue culture में भी मीडिया में auxin cytokinin डाला जाता है just to promote the cell division. टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी में जब कुछ सेल्स ग्रो किए जाएंगे तो वो मीडिया में सेल को दिए गए फूड में ऑक्सिन साइटोकाइनिन पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में डालेंगे जिसकी वजह से सेल डिवीजन प्रमोट होगा. Then we discuss auxin causes phototropism, geotropism. Right? Auxin is introducing cell elongation. And lastly we discuss auxin is causing delay in abscission layer formation, but it is again concentration dependent. जब ऑक्सिन का लेवल ज्यादा है तो यंग प्लांट पार्ट में एब्सिजन लेयर नहीं बनेगा और प्लांट पे लीफ फ्रूट वैसे के वैसे रहेंगे, ग्रो होंगे. प्लांट ओल्ड हो गया, लीफ ओल्ड हो गया, फ्रूट मैच्योर हो गए तो उसमें ऑक्सिन का कंसंट्रेशन कम होगा, एब्सिजन लेयर बनेगा और नेचुरली फ्रूट फॉल, लीफ फॉल होगा. In particular condition, when the plant leaves are young, fruits are immature, small, if auxin level drops, then it may lead to abscission layer formation, leading to early fruit drop, early leaf drop. Right? Okay, check. Come to next part. Apical dominance, which is useful even in art of pruning, hedge making. We know there are different types of buds. There are different types of buds. Apical bud, lateral bud, supraaxillary, extraaxillary. Reproduction in plants में हमने देखा था. See, what you observe generally is this is shoot tip growing like this. The bud over here is apical bud and bud present here. Right? This will be axillary bud. अब ये जो बड है अपाइकल बड, जनरली हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, इट कंटिन्यू टू ग्रो, ये ग्रो कंटिन्यूअसली होती रहती है और प्लांट की हाइट बढ़ती है. जब अपाइकल बड है तब ये लैटरल बड की ग्रोथ सप्रेस होती है. When apical bud is present, it continues to grow and its growth dominates the growth of lateral bud. Apical bud is dominating growth of lateral bud. It's called apical bud's dominance. It is apical dominance. When scientists talk about its reason, then they find out the apical bud is synthesizing auxin. Apical bud is synthesizing auxin, site of auxin synthesis. So यहाँ पे auxin का concentration बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे auxin बन रहा है. This is auxin synthesis site. ये auxin synthesis की site है. Auxin बनाने की factory है. It is auxin synthesizing site. It is a factory. ये फैक्ट्री में ऑक्सिन बन रहा है, राइट? और ऑक्सिन डाउनवर्ड मूव कर रहा है. ये ऑक्सिन बन रहा है और ऑक्सिन
डाउनवर्ड मूव कर रहा है, राइट। सो देखो ऑक्सीजन जैसे डाउनवर्ड मूव करेगा तो फैक्ट्री के नजदीक यहाँ पे ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, और जैसे 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 नीचे जाओगे ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम, राइट, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम। अब पाइकल बर्ड यहाँ पे था, ग्रो होते होते डोमिनेट करते करते वहां पे पहुंचा, इसलिए मैंने यहाँ पर इरेज कर दिया, राइट। सो जैसे ही वहां पे पहुंचा ऑक्सीजन बना ही रहा था, ऑक्सीजन मूव्स टुवर्ड्स मॉर्फोलॉजिकल बेस, ये स्टेट का यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकल बेस है, बेस इज द स्ट्रक्चर व्हिच प्रोवाइड्स सपोर्ट, so oxygen is moving towards the base, basic petalus. Near the site of synthesis oxygen's concentration will be more and gradually concentration of oxygen decreases, gradually concentration of oxygen decreases। अब थोड़ा याद करो हमने क्या बोला था, जहां पे ऑक्सीजन ऑप्टिमम लेवल से ज्यादा वहां पे ग्रोथ कम, जहां पे ऑक्सीजन ऑप्टिमम लेवल पे वहां पे ग्रोथ ज्यादा, बराबर। तब यहाँ पे जो सेल्स है जो ऑक्सीजन बना रहे हैं वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन के लिए टॉलरेंट है, और वहां पे ऑक्सीजन बन रहा है ट्रांसपोर्ट हो रहा है, बन रहा है ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो ऑक्सीजन का लेवल यहाँ पे, राइट, यहाँ पे ऑक्सीजन विल बी मोर, राइट, और विल से दिस लोकेशन ऑक्सीजन विल बी, अगर यूनिट वाइज देखा जाए तो यहाँ पे समझ लो कि 50 है ऑक्सीजन पार्ट्स पर मिलियन लेते हैं, बराबर। यहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल है ये लोकेशन पे अराउंड 30 पार्ट्स पर मिलियन, और यहाँ पे ये बड़े के पास यहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल है 10 पार्ट्स पर मिलियन, राइट। ओके, सब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन बन रहा है, नीचे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये सेल ऑक्सीजन के लिए टॉलरेंट है, सो इट विल कंटिन्यू टू ग्रो, अपाइकल बर्ड कंटिन्यू टू ग्रो, राइट। ये जो है यहाँ पे ये इसको हम बोलेंगे नंबर 1 बर्ड, नंबर 2 बर्ड, नंबर 3 बर्ड, एक्सिलरी बर्ड, राइट। नंबर 1 के पास उसका कॉन्सेंट्रेशन 30 पार्ट्स मिलियन, नंबर 2 के पास 20 पार्ट्स मिलियन, नंबर 3 के पास 10 पार्ट्स मिलियन। दिस इज ऑप्टिमम लेवल, number is imaginary, I repeat, number is imaginary, just to get that. So what we said, the optimum level, this optimum level is present at the lower apical, lower axillary buds, and more concentration is towards the upper axillary bud. So bud number 3 will grow faster, bud number 3 will grow faster, right? Bud number grow will bit grow, the bud number bud 2 will grow bit slower, or it will grow further slower, isn't it? Depending on the concentration of oxygen, जहां पे ऑक्सीजन ऑप्टिमम है बर्ड नंबर 3 ग्रोथ मैक्सिमम, जहां पे थोड़ा ज्यादा है ग्रोथ थोड़ा मीडियम लेवल, यहाँ पे और ऑक्सीजन ज्यादा है तो ग्रोथ सप्रेस है, राइट। So see the bottom line is apical bird is tolerating oxygen, the oxygen synthesized is getting transported, apical bird continue to grow, dominating bird number 1, bird number 2, bird number 3, okay, is called apical dominance. But if we compare bird number 1, 2, 3 with each other, the bird, the axillary bird, which is having optimum concentration of oxygen, which is lower because oxygen is transported from apices to base. ऑक्सीजन अपाइसेस से बेस की तरफ जा रहा है, तो बर्ड नंबर 3 के पास ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ऑप्टिमम रहेगा, हियर यू विल गेट मोर ग्रोथ। यहाँ पे थोड़ा बर्ड नंबर 2 के पास ऑक्सीजन ज्यादा तो थोड़ी लेस ग्रोथ, और ये बर्ड नंबर 1 के पास ऑक्सीजन बहुत ज्यादा, सो बर्ड नंबर 1 का ग्रोथ कम होगा। तो आपको प्लांट हमेशा ऐसे कोनिकल शेप में ग्रो होते दिखाई देंगे, राइट। रीडिंग अपाइकल डोमिनेंस। Apical dominance is a process in which apical bud dominates the growth of axillary bud. It is because of oxygen concentration. Apical bud can tolerate oxygen, it continues to grow.
But when auxin moves downward, lesser the auxin, optimum is the level of auxin, there will be more growth. So lower bud will grow faster and the upper will be gradually growing slower, giving you conical appearance. लेकिन आप नेचर में थोड़ा इधर उधर देखोगे तो आपको पक्का लगता है ये दिखता है कि ऐसे कोनिकल लीव्स ट्री पहले अर्ली एज में होते हैं, बाकी बाद में वो ह्यूज ट्री बन सकते हैं। लेकिन आप जैसे मोनोपोडियल स्टेम है क्रिसमस ट्री का, राइट, उसमें आपको वो कोनिकल शेप प्रोमिनेंटली दिखता है, बराबर। आप देखो इसके बाद का पॉइंट नेक्स्ट वन इज दैट दिस इज सिग्निफिकेंट इवन इन एग्रीकल्चर। देखो आप घर में लॉन लगाते हो, लॉन टू ग्रास, लॉन को आपको मशीन से या कैंची से कट करते हो, देखो ये आपके गार्डन में ग्रो हुआ लॉन है, गार्डन में ग्रो हुआ लॉन, ये लॉन ग्रो हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है, लेकिन थिन है, डेंस डस्टबिन नहीं दिखाई दे रहा। तो आप क्या करेंगे, वो मशीन जो आती है मोनिंग मशीन, उससे आपने ये पूरा ऊपर का लेयर कट कर दिया, मतलब आपने अपाइकल बड कट कर दिया। अब इसके नीचे जो लैटरल बड्स थे ये लैटरल बड की ग्रोथ शुरू हो गई और आपका वो जो लॉन है वो थिक हो गया, आपका जो लॉन है वो थिक हो गया और अब लॉन अच्छा दिखने लगा। This is called hedge making. This is called hedge making. Lawns, apical buds are cut off, which promote branching and lawn grow thicker is hedge making. अगर आप टी प्लांटेशन की बात करते हो, जस्ट इमेजिन ये टी प्लांट है, राइट, टी प्लांट पे यहाँ पे ये लीफ है, आप जानते होंगे कि टी प्लांट में हम लीव्स कट करते हैं और उसको प्रोसेस करके टी बनाते हैं। There are different qualities of tea. Tea is commercially very important, cash crop है, बराबर। अब देखो आपने ये फर्स्ट लीफ जो कट किया, इट्स टॉप क्वालिटी लीफ, राइट, फिर सेकंड लीफ कट किया, सेकंड क्वालिटी लीफ, बराबर। जब आप ये तीन, मतलब यहाँ पे ऐसे समझ लो ऐसे तीन लीफ है, आपने यहां से कट कर दिया, ये इतना पार्ट आपने कट कर दिया, अपाइकल बड आपने रिमूव कर दी, ये टी नंबर क्वालिटी नंबर 1, टी क्वालिटी नंबर 2, क्वालिटी नंबर 3, आपने टी बना लिया। अब आपका प्लांट ऐसे बचा, आपने अपाइकल बड कट कर दी, तो ऑक्सीजन बनाने की साइड थी फैक्ट्री बंद हो गई, ऑक्सीजन बनाने की फैक्ट्री बंद हो गई। तो वो कंडीशन में ये जो ब्रांच है यहाँ पे ग्रो होने वाली, ये जो ब्रांच है यहाँ पे होने वाली, ये फास्ट ग्रो होने लगी, ये ब्रांच भी और फास्ट ग्रो होने लगेगी और इसको यहाँ पे फिर से लीव्स आएंगे, isn't it? So आपने अपाइकल बड रिमूव कर दी, इसलिए लैटरल बड ग्रो हो रही है, अपाइकल बड रिमूव कर दी, ऑक्सीजन की फैक्ट्री बंद हो गई, राइट, तो फिर लैटरल बड्स ग्रो हो रहे हैं। लैटरल बड में ये लीफ नंबर 1, लीफ नंबर 2, लीफ नंबर 3, ऐसे लैटरल ब्रांचेस अगर ज्यादा बढ़ेंगे तो आपका लीफ का नंबर भी बढ़ेगा, isn't it? Because of cutting upper leaf tip, because of cutting upper tip, what you did, you increase yield of tea plant, right? It is called art of pruning. What you did, you remove the apical bud, auxin synthesis stopped, so lower buds are now getting less amount of auxin, which is optimum. पहले से ऑक्सीजन अब कम हो गया, ऑप्टिमम लेवल पे आ गया। ऑप्टिमम लेवल पे आने के बाद, ऑप्टिमम लेवल पे आने के बाद व्हाट हैपेंड, ऑप्टिमम लेवल में आने के बाद क्या हो जाएगा, इसका ग्रोथ बढ़ जाएगा, ये ब्रांच और बढ़ेगी, ये ब्रांच और बढ़ेगी और इसके जो लीव्स है, इसके जो लीव्स है, इसका परसेंटेज अगर बढ़ गया तो ऑब्वियसली टी का यील्ड बढ़ेगा। ओके, सो अपाइकल डोमिनेंस एंड इट्स यूजेस। ओके, चलो राइट डाउन
नेक्स्ट पॉइंट जैसे आपने लिखा है, यू रोट अपाइकल डोमिनेंस, रिमूवल ऑफ अपाइकल बर्ड, reverse the apical dominance, you remove the apical bud, right? Because of which growth of lateral bud is promoted and reversal of apical dominance has happened. आपने apical bud कट कर दी, इसलिए apical bud का dominance खत्म हो गया, तो lateral buds grow हो रहे, lateral bud grow होने लगेंगे, तो हमारा टी टोबैको टी का yield बढ़ेगा. It's called art of pruning, right? So it is reversal of apical dominance by cutting apical bud. उसके लिए और एक किया जा सकता है, बड कट मत करो, ऐसे जो प्लांट था, ये प्लांट को ऐसे रहने दो, यहाँ पे ऑक्सीजन सिंथेसिस की फैक्ट्री अभी भी बरकरार है. अगर आपने इस पे साइटोकाइनिन स्प्रे किया, अगर आपने इस पे साइटोकाइनिन स्प्रे किया, तो ऑक्सीजन का जो अपाइकल डोमिनेंस का प्रोसेस चल रहा था, वो साइटोकाइनिन से रिवर्स हो जाएगा. If you don't want to cut the apical bud and reverse the process of apical dominance, then spray cytokinin. तो हम ध्यान में क्या रखेंगे? Apical dominance is promoted by auxin, reversified by cytokinin or cutting apical bud. Right? Okay. Next one. It is introducing parthenocarpy. What is parthenocarpy? हमने reproduction in plants में देखा है, pollination, fertilization, right? That stimulus of fertilization convert ovary wall to fruit wall and convert ovule to seed. Ovary wall to fruit wall and convert ovule to seed. Right? Okay. अब ये है post fertilization events. बराबर? Now if you want that ovary wall should promote to fruit wall, but there should not be seed formation. Grapes खाते हो, capsule grapes, उसके अंदर seed नहीं होती. Capsule grapes के अंदर seed नहीं होती. Right? So ये जो capsule है, इसके अंदर जो seed नहीं होती, ऐसे fruit को हम बोलेंगे parthenocarpic fruit. ऐसे fruits को हम बोलेंगे parthenocarpic fruits. Right? Okay. So this parthenocarpy can be promoted by auxin. Okay. Second one, it is used as weedicide. Auxin is used as weedicide. हमने artificial auxin का नाम देखा था 2,4-D. Right? 2,4-D is artificial auxin which is selectively killing the dicot weed. You know the word weed? See, आपका फार्म है ज्वारी का, जवार सो किया है आपने, और अनवांटेड डाइकॉट प्लांट ग्रो हो रहे हैं. You are adding pesticides, you are adding fertilizers, you are adding water. All that which you want to provide your crop is unnecessarily or undue advantage लेके वो weed grow हो रहा है, और weed की growth हमेशा crop plant से fast होती है. Right? So weed क्या करेगा? आपने जो plant को weed turned unwanted glass का unwanted plant, वो क्या करेगा? आपने जो प्लांट को फर्टिलाइजर दिया है, वाटर दिया है, राइट, जो सनलाइट मिलना है, वो सब वीड खा जाएगा. वो प्लांट से कॉम्पीट करेगा. वीड इज कॉम्पिटिंग विथ योर क्रॉप प्लांट एंड ऑब्वियसली योर yield will decrease. One more damage is there are some pathogens, disease causing organism. There are some pathogens, disease causing organism. वो क्या करते हैं? पार्टली अपनी लाइफ साइकिल आपने जो जवार सो किया था उस पे कंप्लीट करते हैं, और पार्टली अपनी लाइफ साइकिल बाजू वाले वीड पे जाके कंप्लीट करते हैं. राइट? ओके. सो वो कंडीशन में आपके फार्म में जो अनवांटेड प्लांट है वो पैथोजन को रहने के लिए जगह दे रहा है. राइट? सो पैथोजन विल ग्रो ओवर देयर एंड अगेन अटैक योर क्रॉप मोर vigorously. So we always kill weed either by mechanically, labor appoint कर लो, वो select करके unwanted plant को cut कर देंगे, उखाड़ के फेंक देंगे, या spray weedicide. Right? So जवार का plant है, monocot plant आपने सो किया है, आपके farm में dicot weed अगर grow हो रहा है, तो
वो कंडीशन में आप 2,4-D स्प्रे करेंगे तो डाइकॉट विड पूरा खत्म हो जाएगा, राइट। यहाँ पे थोड़ा एम्स लेवल का पॉइंट जो हायर एंड के क्वेश्चन पे पूछा जाएगा। सी why this 2,4-D is killing dicot wind? It is damaging PS2. Obviously of dicot why इतना ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, राइट। सी डाइकॉट प्लांट की PS2, डाइकॉट प्लांट की पिगमेंट सिस्टम 2, फोटोसिंथेसिस, लीफ, PS1, PS2, लाइट रिएक्शन, याद आ रहा है? ठीक है। सो डाइकॉट प्लांट का लीफ का PS2 2,4-D डैमेज करता है। Now you know if PS2 is damaged, there will not be non-cyclic. If there is no non-cyclic, अगर वहां पे non-cyclic नहीं हो रहा है, then what will happen? Non-cyclic नहीं हो रहा है तो क्या होगा? There will be no ATP and NADPH formation. There will be no ATP and NADPH formation. Okay, अब देखो ATP NADPH अगर नहीं है तो डार्क रिएक्शन नहीं होगा, प्लांट फूड नहीं बनाएगा, फिर आज का फूड नहीं बन रहा है तो कल जो बनाया था वो खाते जाएगा, आज कल परसों जो स्टोर्ड फूड था वो खाते जाएगा और अल्टीमेटली उसका स्टोर्ड फूड खत्म हो जाएगा, राइट। एंड बाय स्टार्वेशन, भूखमरी से विड मर जाएगा। Artificial auxin 2,4-D is selectively killing dicot weed. When your farm is having monocot crop and dicot weed is growing, spray 2,4-D. 2,4-D damages PS2. If PS2 is not working, non-cyclic won't happen, assimilatory power will not form, dark reaction, glucosynthesis will stop. Plant will consume the stored food. Once it gets over, the weed will be killed by starvation, right? Okay, then अब थोड़े से रट्टा मारने के पॉइंट। ऑक्सिन प्रमोट्स फीमेलनेस, मतलब बाइसेक्सुअल प्लांट है। ओके, आपने अगर ऑक्सिन स्प्रे किया तो फीमेल फ्लावर का नंबर बढ़ेगा। Why to promote female flower number? More the female flower, more will be the carpel, more will be the ovary, more will be the fruits, right? Okay, so ऑक्सिन प्रमोट फीमेलनेस, राइट। वन मोर, अगर गोडाउन में पोटैटोज भर के रखे, यू नो पोटैटो स्प्राउट्स, पोटैटो का स्प्राउटिंग होता है, यू डोंट वांट, क्यों? आपने पोटैटो खुद के खाने के लिए भर के रखे और पोटैटो का वो जो स्प्राउट है वो मेरिस्टेमेटिक सेल उसके पोटैटो का स्टोर्ड फूड खा जा रहा है, सो वी डोंट वांट द पोटैटो शुड स्प्राउट। ओके, सो व्हाट विल डू इन दैट सिचुएशन? स्प्रे सुप्राऑप्टिमल लेवल ऑफ ऑक्सिन। आप क्या करेंगे? ऑक्सिन का कंसंट्रेशन सुप्राऑप्टिमल लेवल पे स्प्रे करो। मोर द ऑक्सिन, द ग्रोथ ऑफ द स्प्राउट्स विल बी रिटार्डेड। स्प्राउट का ग्रोथ कम हो गया तो ऑब्वियसली स्टोर्ड फूड जो पोटैटो में है, पोटैटो में ही रहेगा और हमको खाने को मिलेगा, राइट। सो इट प्रमोट, इट इनहिबिट स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो, right? So this is what is there in your syllabus. Okay, इसके जो additional point है वो हम revision में लेंगे related to auxin. Okay, चलो write down next one. Gibberellin, gibberellic acid, Ga. Gibberellins, gibberellic acid, Ga. Come to gibberellins. थोड़ा हिस्टोरिकल अकाउंट स्टेट बोर्ड में है, थोड़ा हिस्टोरिकल अकाउंट सो एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन ये 12th में हमारे लेसन है तो हमको एनसीईआरटी के अलावा स्टेट बोर्ड पे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो सब लोग स्टेट बोर्ड के पॉइंट्स यहाँ पे लिख लेंगे। सी नाउ, gibberellins are weak organic acids. They are with gibberellin. अब देखो गिबेरेलिन एंड ऑल इट्स नॉट देयर, लेकिन जिबरेलिन से रिलेटेड जितने जिब है वो ध्यान में रखेंगे। जिबरेलिन, गिबेरेलिन, जिबरेल्ला, isn't it something? So हाँ, थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस है
लेकिन 90% हमारे दिमाग में है, तो थोड़ा उससे रिलेटेड जो है वो देख लेंगे. So it is organic acid. It is weak acid, growth promoter. Gibberellin is growth promoter. Right? It makes the thing big. इसे ध्यान में रखेंगे. It makes the thing big. Spelling जो बड़ा है gibberellin, gibberellic acid. It makes the thing big. Okay. First time scientist Kurosawa discovered it. He was pathologist, plant pathologist, studying plant disease rice का disease पढ़ रहे थे. He observed that in farm some rice plant grow very tall. You know rice is monocot, has adventitious fibrous root system. If it grow very tall, the root system cannot support and it collapse. If the rice plant with adventitious root system grow tall, it cannot support growth and it will collapse. अगर ये नीचे गिर गया तो obviously आपका yield damage होगा. Right? So as it is growing, it will collapse. Yield damage हो गया. तो हमको ये disease नहीं चाहिए. So Kurosawa, plant pathologist, studying rice seedling disease. This plant is growing very tall like a foolish seedling. राइस का प्लांट फुलिश जैसे टॉल हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे फुलिश सीडलिंग डिजीज, बकाने डिजीज. बोलो 5 बार. जिबरलिन, कुरोसावा, बकाने डिजीज, फुलिश सीडलिंग डिजीज caused by fungus Gibberella. फिर से Gibberellin, scientist Kurosawa studied the disease, Bakane disease, also called foolish seedling disease. Pathogen is Gibberella. इसका पैथोजन क्या है? Gibberella species. Fungi Gibberella causes disease to rice plant. Gibberellin, Kurosawa studied rice disease, Bakane disease, foolish seedling disease caused by fungus Gibberella. And इतना historical account काफी है. So he take that plant material which was having disease plant part लिया, उसको क्रश किया, उसका एक्सट्रैक्ट लिया और हेल्दी प्लांट पे स्प्रे कर दिया. हेल्दी प्लांट पे स्प्रे किया तो सेम डिजीज के सिम्टम हेल्दी प्लांट्स में आ गए. Okay, what he did? Take a healthy plant, take a diseased plant, take out that infected part, crush it. Okay, उसमें का जो एक्सट्रैक्ट निकला वो हेल्दी प्लांट पे स्प्रे किया तो सेम डिजीज हेल्दी प्लांट पे हो गया. मतलब इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट का फंगस जिबरेला हेल्दी प्लांट पे गया, वहां पे उसने सेम केमिकल जिबरलिन बनाया. जिबरलिन की वजह से प्लांट टॉल हुआ, फुलिश जैसे टॉल हुआ, वेड्यासारखं झाड मोठं झालं. फुलिश सीडलिंग डिजीज, बकाने डिजीज, and it was collapsing the plant, deteriorating the yield. Right? So what he noted, that fungus Gibberella synthesizes a chemical which make the plant tall by internodal elongation. देखो साइंटिस्ट का अप्रोच, उसने डिजीज देख लिया लेकिन उसको पॉइंट क्या नोट हुआ, that Gibberella species is synthesizing the chemical gibberellin which is inducing internodal elongation. Right? तो चलो अगर हमको प्लांट में इंटरनोडल इलॉन्गेशन करना है, प्रमोट करना है, तो जिबरलिन स्प्रे करेंगे. कौन से प्लांट में आपको इंटरनोडल इलॉन्गेशन चाहिए? शुगरकेन का अगर इंटरनोड बड़ा हो गया तो शुगरी सिक्रीशन उसके अंदर ज्यादा होगा.
आपका आपका शुगर केन यहाँ तक ग्रो हो रहा है, आपने जिबरलिन स्प्रे किया, वो और ग्रो हुआ, आपने थोड़ा सपोर्ट चाहे तो दे दिया, उसके इंटरनोड इलॉन्गेट हो गए, तो आपका शुगर का यील्ड, जूस का यील्ड बढ़ेगा, right? So gibberellin is also naturally synthesized by the plant. There are 100 types of gibberellins. Their chemical structure varies. GA3, right? Gibberellin का सबसे widely used GA3 is most widely used and abundantly found gibberellin, right? Okay, अब देखो साइंटिस्ट ने ये सब कर लिया, फिर उसके सिग्निफिकेंसेस देखे। तो सिग्निफिकेंस, इट प्रमोट फर्मेंटेशन प्रोसेस, ईस्ट से फर्मेंटेशन करते हो। वैसे ही आप बार्ली लेके उसका माल्टिंग ब्रीविंग करते हो, ब्रीविंग करते हो। सो माल्टिंग के प्रोसेस में, माल्टिंग का प्रोसेस आप चाहे तो माल्टिंग का प्रोसेस दे सकते हो। द सीड्स आर kept at particular temperature, right? Then continuously stored, partly crushed. This malting followed by brewery, fermentation करवा के yield बढ़ता है। So malting is essential. Okay? कुछ फूड ग्रेन माल्ट करके खाए जाते हैं, या अल्कोहल इंडस्ट्री में भी माल्टिंग का प्रोसेस एक कॉमन प्रोसेस है। सो अगर आप जीए डालते हो तो माल्टिंग का प्रोसेस फास्ट होता है, अगर आप जीए डालते हो तो माल्टिंग का प्रोसेस फास्ट होता है। सो जिबरलिन इज इंपॉर्टेंट फॉर इंक्रीजिंग लेंथ, मेकिंग द प्लांट टॉल, राइट? रिवर्सल ऑफ ड्वार्फिज्म, छोटे प्लांट को ड्वार्फनेस से रिवर्स करके टॉल बना दिया जाता है, मेकिंग द प्लांट टॉल, रिवर्सल ऑफ ड्वार्फिज्म, इंटरनोडल इलॉन्गेशन, बड़े बड़े काम करता है, बोला ना, जिबरलिन का स्पेलिंग बड़े बड़े काम करता है। फ्रूट का साइज बढ़ाता है, कैप्सूल जो ब्रेक होता है, कैप्सूल पार्थेनोकार्पिक जो फ्रूट होता है उसका लेंथ बढ़ाता है, फ्रूट की साइज बढ़ गई, लेंथ बढ़ गई, आपका यील्ड बढ़ गया, बराबर? ओके, माल्टिंग प्रोसेस ब्रेवरी इंडस्ट्री में फर्मेंटेशन प्रमोट करता है, बराबर? अब देखो रोसेट प्लांट, व्हाट इज रोसेट प्लांट? जिसके मैंने जिनमें कैबेज का प्लांट है, आपने कैबेज का प्लांट देखा होगा, बड़े बड़े लीव्स होते हैं, राइट? और ये जो ऊपर का अपाइकल बड है, यहाँ पे लीफ का क्लस्टर होता है। आप कैबेज खाते हो, आप क्या खाते हो? आप अपाइकल बड खाते हो, राइट? सी, ये फोटोसिंथेटिक लीफ है, ये भी फोटोसिंथेटिक है, लेकिन लाइट नहीं मिलता है, तो आपकी कैबेज लाइट ग्रीन कलर की होती है, राइट? अंदर के लीव्स को सनलाइट नहीं मिलता है डायरेक्टली, तो ये जो लीफ है ऑइल्ड अराउंड ईच अदर फॉर्मिंग अ अपाइकल बड, कंडेंस्ड अपाइकल बड। व्हाई दिस इज कंडेंस्ड? क्योंकि इसके बीच का ये जो इंटरनोड है, ये दो लीफ के बीच में का ये जो इंटरनोड है, राइट, ये शॉर्ट है, बिकॉज द इंटरनोड, ऐसे दो पत्ते थे, अगर इंटरनोड शॉर्ट हो गया तो नजदीक आ जाएंगे, क्लस्टर हो जाए, राइट? कैबेज इज अ रोसेट प्लांट, रिमेंबर दिस वर्ड, cabbage is rosette plant. What is rosette? The leaves are condensed because the internodes are shortened, right? Which is giving us yield. तो साइंटिस्ट ने ये करके देखा, ये समझ लो कैबेज जैसे ड्वार्फ रोसेट प्लांट पे जिबरलिन डाला तो 2 फुट का कैबेज 10 फीट का बनता है, रिवर्सल ऑफ ड्वार्फिज्म। ओके, रोसेट प्लांट को 2 फीट से 10 फीट करवाना, रोसेट प्लांट का रिवर्सल ऑफ ड्वार्फिज्म करवाना, उसको बोलते हैं बोल्टिंग। रोसेट प्लांट का रिवर्सल ऑफ ड्वार्फिज्म करवाना, इसको बोलते हैं बोल्टिंग, राइट? सो बोल्टिंग इज वेरी obvious because of gibberellin, but it's not agriculturally significant. हमने करके देखा, देखो शुगर केन को टॉल किया, यील्ड बढ़ गई, जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट को टॉल किया, रिवर्सल ऑफ ड्वार्फिज्म, रोसेट प्लांट को टॉल किया, बोल्टिंग, राइट? ओके, इन जनरल इट इज ग्रोथ प्रमोटर, इन जनरल इट इज ग्रोथ प्रमोटर। ओके, चलो कम टू पेज नंबर 249. Gibberellins are another kind of growth promoter, PGR, plant growth hormone. There are more than 100 gibberellins reported from
widely different organisms such as fungus and higher plant. They are found in variety of plants. Okay? ये पूरा पॉइंट लिख के लेना है, लिख लो सब लोग। लिख लिया? Right? So let us continue reading. They are denoted as GA1, GA2, GA3 and so on. However, gibberellic acid GA3 was one of the first gibberellin to be discovered and remain most intensively studied from all. All GAs are acidic. Gibberellic acid, नाम नहीं आता है. They produce a wide range of physiological responses to plant. Their ability to cause an increase in length of axis is used to increase length of grape stalk. Okay, grape का stalk, grape के fruit की length को बढ़ाएगा. Gibberellins causes fruit-like apple to elongate and improve its shape. Generally promote कर रहा है ना, growth promoter बड़ा बना रहा है. बड़ा भी कैसे बना रहा है? Length बढ़ा रहा है. So apple की length बढ़ेगी. They also delay senescence. Growth promoter है. तो aging, right? Maturation के बाद आने वाला aging gibberellin withdraw करेगा, reduce करेगा, slow down करेगा. It also delays senescence. Thus, the fruit can be left on a tree longer so as to extend the market period. आपके प्लांट पे भी 100 एप्पल्स है, राइट? आपने आज 20 बेच दिए, तो 80 गिर के मर जाएंगे या गिर के खराब हो जाएंगे. तो जिबरलिन उसको होल्ड करने में मदद करेगा ताकि आज 20 कल 20 आप सेल आउट कर सकते हो. प्रमोट इट्स लाइफ. Thus the fruit can be left over a tree longer so as to extend the market period. मार्केट में बेचने को आपको टाइम मिलेगा. GA3 is used to speed up the malting process in brewing industry. अल्कोहल फर्मेंटेशन में, ब्रीवरीज इंडस्ट्रीज में इसको एक पर्टिकुलर प्रोसेस से दिया जाता है. उसमें GA डाला तो वो प्रमोट प्रोसेस जो 10 दिन में होगी वो और कम होगी. Sugarcane stores carbohydrate as starch sugar in their stem. Spraying sugarcane crop with gibberellin increases the length of the stem, thus increasing the yield by as much as 20 tons per acre. अगर आप शुगरकेन पे जिबरलिन स्प्रे करते हो, शुगरकेन पे अगर आप जिबरलिन स्प्रे करते हो तो आपका शुगरकेन का यील्ड बढ़ेगा. Spraying juvenile conifers with GA hastens the maturity period. Right? Conifer, cone shape की जो प्लांट रिप्रोडक्शन के लिए जिम्नोस्पर्म जो कोन बनाते हैं, right? So spraying juvenile conifer with GA hastens the maturity period. मतलब कोनिफर कैटेगरी का प्लांट, कोन बेरिंग कैटेगरी का प्लांट, जिम्नोस्पर्म जैसे प्लांट, छोटे प्लांट पे अगर GA स्प्रे किया तो वो जो 10 साल के बाद मैच्योर होने वाला था वो 5 साल में 8 साल में मैच्योर होगा. So it will promote maturity, thus leading to early seed production. Okay, जल्दी ग्रो होंगे, जल्दी पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन करेंगे, सीड बनाएंगे, तो सीड जो हमारा यील्ड है वो हमको जल्दी मिलेगा. एग्रीकल्चर में हम हमेशा ग्रोथ मैनिपुलेट क्यों करेंगे? राइट? देखो, अगर आपको सीड चाहिए तो आप चाहते हो कि प्लांट जल्दी मैच्योर हो ताकि आपका सीड जो यील्ड है वो जल्दी मिलेगा, ज्यादा मिलेगा. अगर आप स्पिनच सो करते हो, पत्ता गोभी सो करते हो, तो आपको सीड में इंटरेस्ट नहीं है, आपको लीफ में इंटरेस्ट है, तो आप वेजिटेटिव ग्रोथ प्रमोट करोगे. राइट? सो ऑक्सिन प्रमोट वेजिटेटिव ग्रोथ. मतलब अगर आपके फार्म में स्पिनच है तो ऑक्सिन स्प्रे करो, कैबेज है ऑक्सिन स्प्रे करो ताकि कैबेज लीफ का नंबर बढ़ेगा. अगर आपको फ्रूट चाहिए, फ्लावर चाहिए, सीड चाहिए तो GA स्प्रे करो, मैच्योरेशन अर्ली आएगा. समझ रहे हो? सो इट डिफर्स. क्या सही है क्या गलत है ऐसी बात नहीं. आप क्या करना चाहते हो उसके लिए आप क्या करोगे, कौन से केमिकल को यूज करोगे, दैट इज द सेंस, दैट इज साइंस. राइट? Gibberellin also promote bolting, internodal elongation. रोसेट प्लांट, कैबेज जैसे प्लांट को टॉल करना उसको बोलते हैं बोल्टिंग. राइट? Gibberellin also promote bolting, internodal elongation just prior to flowering.
in wheat, cabbage and mini plant with rosette habit. And mini plant with rosette habit. Rosette habit के plant को वो tall करेंगे. चलो, write down functions, role of GA. I'm dictating, you are supposed to write down. GA. Role, first point, internodal elongation. Internodal elongation. उसके आगे लिखो. In sugarcane, it promotes. In sugarcane, it promotes length of internode. Carbohydrate synthesis and yield. उसी में लिखो कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस एंड yield लिख लिया. उसी में लिखो आगे इंटरनोडल इलॉन्गेशन के आगे लिखो it diversify or it causes reversal of dwarfism. Reversal of dwarfism. अब ब्रैकेट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो. मेंडल के टाइम और एक बार समझाऊंगी. 10th में मेंडल सीखा था, याद है ना, स्मॉल टी वाला पी प्लांट. लिखो ब्रैकेट में जेनेटिकली ड्वार्फ स्मॉल टी पी प्लांट. जेनेटिकली ड्वार्फ स्मॉल टी पी प्लांट. राइट, समझ लो पी प्लांट है. राइट, इसमें आप इसके जीन्स है स्मॉल टी. इसके ऊपर आपने डाला जी. राइट, अब देखो जीए की वजह से ये टॉल होगा. जीए की वजह से ये टॉल होगा. इंटरनोडल इलॉन्गेशन होगा तो वो टॉल होगा. लेकिन जीए की वजह से स्मॉल टी कैपिटल टी नहीं होता है. Are you getting me? GA के स्प्रे करने से स्मॉल टी ये जो जीन है ये कैपिटल टी नहीं होता है. So just write down. Explanation we'll see in Mendel. Genetic basis of inheritance. So what you wrote? Reversal of dwarfism in the bracket. Genetically dwarf plants small t can be made tall phenotypically. What is phenotypically? दिखने में वो टॉल होगा, उसका जीन कैपिटल टी नहीं हुआ. बिकम टॉल phenotypically, comma small t is not converted to capital T. अब मैं इन साइंटिफिक वर्ड यूज कर रही हूँ, converted. Otherwise I should say small t is not mutated to capital T. स्मॉल टी का म्यूटेशन होके कैपिटल टी नहीं बना. स्मॉल टी जीन है, जिबरलिन डाला, कैपिटल टी हुआ नहीं. तो सिंपल भाषा में लिख लो स्मॉल टी इज नॉट कन्वर्टेड टू कैपिटल टी. ब्रैकेट क्लोज. बाकी डिटेल में मेंडल. राइट ऑन नेक्स्ट पॉइंट. मेकिंग रोसेट प्लांट टॉल. Making rosette plants tall is called bolting. B-O-L-T-I-N-G. Making rosette plants tall is called bolting. B-O-L-T-I-N-G. Right, अब ब्रैकेट में लिख लो. Rosette plant has condensed internode with bunch of leaves, cluster of leaves. Rosette plant have condensed internode with bunch of clustered leaves. Bracket close.
राइट। सो ये रिवर्सल ऑफ डॉर्फिज्म, शुगर केन को टॉल करेगा, जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट को टॉल करेगा, रोसेट प्लांट को टॉल करेगा तो बोलेंगे बोल्टिंग। राइट ऑन नेक्स्ट वन, increases length of grape stalk, increases length of grape stalk. Next one, increases length, elongation of apple fruit, increases length, elongation of apple fruit and improves shape. Next point, fruits can be left longer on mother plant. Because of GA, fruits can be left longer on mother plant, extending market period. आपको सेल आउट करने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा, एक्सटेंडिंग मार्केट पीरियड। नेक्स्ट वन, GA promote malting process, GA promote malting process in breeding industries, BREWING, in breeding industries. Spraying juvenile conifers with GA, spraying juvenile conifers with GA hastens maturity and early seed yield. अब मैंने एक बात आपको सिखाई थी फिजियोलॉजी ऑफ सीड जर्मिनेशन में। You sow the seed, right? Radical grows out, more water absorption, solubilization and mobilization food influenced by G. याद आ रहा है कुछ? जर्मिनेटिंग सीड के अंदर पहला हार्मोन जो एक जगह स्टोर्ड फूड को सोल्यूबलाइज करके मोबिलाइज करेगा, ट्रांसपोर्ट करने में मदद करेगा, वो कौन सा हार्मोन है? GA. राइट डाउन। फर्स्ट हार्मोन प्रोड्यूस्ड इन जर्मिनेटिंग सेल, फर्स्ट हार्मोन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग जर्मिनेटिंग सेल to stimulate solubilization and mobilization of food, solubilization and mobilization of food. By lytic enzymes, amylase, lipase, protease, amylase, lipase, protease. प्रोटीन का डिग्रेडेशन करने वाले प्रोटीएज, अमाइलो स्टार्च का डिग्रेडेशन करने वाले अमाइलेज, लिपिड का डिग्रेडेशन करने वाले लाइपेज। यू नो दिस, सीखा है डाइजेशन में। GA is the first hormone to be synthesized in germinating cell. Next point, it promotes wellness. It promotes wellness. Right? चलो, come to the next part. यहाँ पे हमने पढ़ा था we completed reading, right? चलो, write down next one, cytokinins. Next hormone, cytokinins. Next growth promoter, cytokinin. Auxin, gibberellin, cytokinin are growth promoters. Right? Work hand in hand. बस छोटे छोटे डिफरेंसेस है, वो हम नोट करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे। अदरवाइज तीनों ग्रोथ ही प्रमोट करते हैं। ओके, बेस्ट एग्जांपल दे दूं, देखो ऑक्सिन भी सेल डिवीजन करता है,
साइटोकाइनिन नाम ही बोल रहा है, साइटोकाइनिन, साइटोकाइनेसिस, the hormone HCR which promotes cytokinesis, cytokinin. Auxin promotes cell division, cytokinin promotes cell division. फर्क क्या है? Auxin promotes cell division in wounded cell for secondary growth formation. Wounded cell 1 या फिर secondary cell division. Correct? Cytokinin all meristem, mainly primary meristem activity. सेकेंडरी होता है लेकिन वो थोड़ा बाद में समझाऊंगी, पहले इतना समझ रहे हो? सो ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन तीनों ग्रोथ प्रमोटर है, लेकिन थोड़ा थोड़ा फर्क है, वो समझना है। मैंने बोला था ना, हार्मोन समझने वाली बात है। फिर एमसीक्यू धीरे धीरे आएंगे फट से। ओके, एक सेक्शन में रट्टा के एमसीक्यू से ही आ सकते हैं। सो रट्टा एंड प्रायोरिटी, फिर वो थोड़े थोड़े जो बदलाव है वो नोट करें। ठीक है, कम टू this part. What is this? Cytokinin. The name is suggesting it is related to cytokinesis. Cytokinins, growth promoter. See, it is derivative of purine, which is a nitrogen base. DNA याद आ रहा है, deoxyribonucleic acid. It is having nitrogen bases. Purines, pyrimidines. उसमें का purine, उसका प्रकार एडेनिन, प्यूरिन का प्रकार एडेनिन, उससे उसका ये डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव मतलब इसके प्यूरिन एडेनिन में केमिकल रिएक्शन होने के बाद सेल में, प्लांट में साइटोकाइनिन बनता है। सो प्रिकर्सर ऑफ साइटोकाइनिन, रॉ मटेरियल फॉर साइटोकाइनिन इज प्यूरिन बेस्ड एडेनिन। प्यूरिन जो डीएनए में होता है उसका प्रकार एडेनिन, उससे साइटोकाइनिन बनता है। साइंटिस्ट Cook and Miller discovered it in the plants. बच्चों अच्छे से लिख लो, अब कुछ लाइन एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन वो बार बार एमसीक्यू में दिखेंगे, कंफ्यूजन शुरू होगा। राइट, तो कंफ्यूजन क्या है उसके लिए लिख के दे रहे। प्लांट में Cook and Miller ने सबसे पहली बार साइटोकाइनिन को हार्वेस्ट किया, और वो प्लांट था टोबैको प्लांट। Cook and Miller studied it in tobacco plant for the first time. Cook and Miller का contribution टिश्यू कल्चर में बहुत ज्यादा है, तो थोड़ा ये साइंटिस्ट का नाम ध्यान में रखेंगे, अच्छा होगा। Right? Cook and Miller first time have studied, discovered cytokinin in plant. In which plant? Tobacco. But otherwise, cytokinin like chemical kinetin was first time harvested from a sperm of a fish. फिश का स्पर्म है, मेल गैमेट है, उसको ऑटोक्लेव करके, यू नो द वर्ड ऑटोक्लेव, ऑपरेशन थिएटर्स में, माइक्रोबायोलॉजी के लैबोरेटरी में बड़े बड़े प्रेशर कुकर होते हैं, जिसमें अलग अलग इक्विपमेंट ये स्टरलाइज किए जाते हैं। सो हियरिंग स्पर्म, हियरिंग इज नेम ऑफ द फिश। हियरिंग फिश के स्पर्म को ऑटोक्लेव करके काइनेटिन पहली बार आइसोलेट किया गया। सो फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड काइनेटिन और साइटोकाइनिन, होता केमिकली अलग, दे आर वर्किंग द सेम, बट प्लांट में काइनेटिन नहीं मिलेगा, प्लांट में साइटोकाइनिन मिलेगा जो एडेनिन का डेरिवेटिव। अगेन, सो फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड काइनेटिन फ्रॉम हियरिंग स्पर्म व्हिच इज अ टाइप ऑफ फिश व्हेन ऑटोक्लेव्ड, राइट? देन Kinetin not found in plants. Cytokinin is found in plant. Kinetin is found in fish, animals. Right? Then natural cytokinin like chemicals are found in coconut milk, corn kernel. अब हमने सीड का स्ट्रक्चर सीखा। सीड has सीड कोट, टेस्टाटेगमन, उसके अंदर एम्ब्रियो। हमने कॉर्न, मेज का सीड ड्रॉ किया, आपको हमेशा दिक्कत आती है, राइट? कॉर्न, मेज की सीड, ये एक्चुअली ग्रेन कैटेगरी में जाता है। इट इज अ फ्रूट कैरियोप्सिस, मॉर्फोलॉजी में सिखाया, प्लांटिंग में सिखाया, रिप्रोडक्शन इन प्लांट में भी सिखाया। सो कॉर्न क्रैनल, ओके, सीड का जो, मेज के ग्रेन का जो आउटर कवरिंग है, जिसको हमने हल बोला, उसके अंदर का जो पार्ट है दैट इज क्रैनल, राइट?
So concrenal, con के सेल के अंदर, inner part of the cell, you obtain zeaxanthin, which is again cytokinin breaking. So what we said that coconut milk, concrenal, kernel मतलब inner part of the cell, con के लिए उसको fruit भी बोल सकते हैं, which is giving you zeaxanthin. Right? साइटोकाइनिन सेल डिवीजन करता है, फंक्शन रोल की बात करते हैं. साइटोकाइनिन सेल डिवीजन करता है तो वो स्ट्रक्चर को यंग बनाएगा, isn't it? देखो नए सेल ज्यादा बन रहे हैं, ओल्ड सेल कम, नए सेल ज्यादा बन रहे हैं, सेल मर गए तो उसको रिप्लेसमेंट आ रहा है. isn't it cytokinin keeping the structure young? क्या आप ध्यान में कैसे रखोगे? देखो ऑक्सिन छोटे छोटे काम करता है, ऑक्सिन का बिहेवियर बड़ा एनर्जेटिक है. आपको भी लगा होगा ऑक्सिन सिखाते सिखाते मुझे बहुत टाइम गया, बहुत काम है ऑक्सिन के. राइट? जिबरलिन स्पेलिंग बड़ा है, बड़े बड़े काम करता है. राइट? साइटोकाइनिन यंगनेस प्रमोट करता है. हमको रट्टा ऐसे मानना है, ऑक्सिन बहुत विविधता है, अच्छे से पढ़ो. जिबरलिन बड़े बड़े काम करता है, साइटोकाइनिन यंगनेस प्रमोट करता है. बराबर? चलो पहले पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, then we will write down the rules. I am on page number 249. Cytokinin have specific effects on cytokinesis. Cytokinin chemical cell division के cytokinase के process पे effect करते हैं. And were discovered as kinetin. Okay, उनको हमने kinetin ये form से पहले discover किया. Kinetin is a modified form of adenine, a purine, from autoclaved hearing sperm DNA. फिश का नाम है hearing, उसके sperm के DNA में ऑटोक्लेव करने के बाद हमको ये काइनेटिन केमिकल मिला. Kinetin does not occur naturally in plant. Search for natural substances with cytokinin-like activities led to the isolation of zeaxanthin from concrenal and coconut milk. देखो हम कोकोनट मिल्क, कोकोनट वाटर देते हैं पेशेंट को पीने के लिए, एनर्जी देने के लिए. वो लेने के बाद साइटोकाइनिन जैसा केमिकल मिलता है, सेल डिवीजन, हीलिंग, बॉडी का इन जनरल हीलिंग प्रमोट होता है. राइट? Since the discovery of zeaxanthin, several natural occurring cytokinin and some synthetic compounds with cell division promoting activity have been identified. Natural cytokinins are synthesized in the region where rapid cell division occurs. Site of synthesis, meristematic zone. Developing shoot bud young fruits. Right? It helps in producing leaves, chloroplast leaves. देखो मैंने आपको बोला था ये नए लीफ बनाएगा, लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट बनाएगा तो फोटोसिंथेसिस का रेट ज्यादा होगा. फूड ज्यादा बनाया, प्लांट में फूड स्टोर करके रखा तो प्लांट हेल्दी रहेगा, यंग रहेगा. साइटोकाइनिन स्टोमेटा ओपन रखेगा, CO2 अंदर आएगा, फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ेगा. राइट? ओके. लैटरल शूट ग्रोथ एंड एडवांटेजेस शूट फॉर्मेशन. याद करो अपाइकल डोमिनेंस. Apical dominance, apical bud is dominating and not allowing growth of lateral bud. Apical bud dominance को हमने रिवर्स कैसे किया? apical bud को कट किया, या फिर don't cut apical bud and spray cytokinin. So apical dominance can be reversified by spraying cytokinin. We have discussed. Cytokinin help overcome apical dominance. They promote nutrient metabolism, which help in delay of leaf senescence. लीफ में मेटाबॉलिज्म, फूड प्रोडक्शन प्रमोट करेगा तो लीफ का एजिंग रिटार्ड करेगा, स्टोमेटा को ओपन रखेगा. बहुत कम लिखा है एनसीईआरटी वालों ने. चलो अब रियल रोल्स देखते हैं, इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू में पूछे जाएंगे. राइट डाउन रोल्स ऑफ साइटोकाइन. फर्स्ट वन, प्रमोट सेल डिवीजन. Promote cell division. Mainly at meristematic regions. Mainly at meristematic regions. Write down one more. Cytokinin promote cell
सर्कल सेल का रेक्टेंगल बना, अब ड्रॉ करके नहीं बताऊंगी, ठीक से सुनो। सर्कुलर सेल, आइसोडायमेट्रिक सेल से रेक्टेंगल शेप का सेल बना ऑक्सीजन की वजह से, बराबर। ये छोटा सेल है, साइटोकाइनेसिस से ट्रीट किया तो बड़ा सेल बनेगा। इज इट आइसोडायमेट्रिक ग्रोथ? सेल इलॉन्गेशन और सेल एनलार्जमेंट में फर्क समझ रहे हो? सेल की लेंथ बढ़ना, सेल एनलार्जमेंट। वेट से सेल की ग्रोथ बढ़ना, सेल इलॉन्गेशन। सेल की ग्रोथ बढ़ना, सेल इलॉन्गेशन, राइट। सेल का साइज चारों साइड से बढ़ना, सेल इनलार्जमेंट, राइट। So right now next one, cytokinin promotes cell enlargement oblique isodiametric growth. Cytokinin promotes cell enlargement, that is isodiametric growth. Next one, reversal of apical dominance. Reversal of apical dominance. Write down. Without cutting apical bud, if cytokinin is spread, without cutting apical bud, if cytokinin is spread on growing shoot tip, cytokinin is spread on growing shoot tip. Growth of lateral buds will be promoted. Next one, it promotes seed germination and help in breaking seed dormancy. Promote seed germination, help in breaking seed dormancy. Next one, delay senescence, delay aging. Delay senescence, aging. ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो, एनसीईआरटी वालों ने नहीं दिया, बार बार मिलेगा आपको। रिचमंड एंड लैंग इफेक्ट। साइटोकाइनिन जो एजिंग डिले करता है, सिनेंसिस डिले करता है, इसको बोलते हैं रिचमंड एंड लैंग इफेक्ट। राइट डाउन, RICHMOND, रिचमंड एंड लैंग, LANG, Richmond and Lang effect, bracket close. By nutrient metabolism. अब देखो, ये यंगनेस प्रमोट करता है ना, ठीक है, एजिंग डिले करता है मतलब यंगनेस प्रमोट करता है। लिख लो इसके नीचे, साइटोकाइनिन मेनली प्रमोट यंगनेस। साइटोकाइनिन मेनली प्रमोट्स यंगनेस। उसमें क्या क्या होता है, लिखो। प्रमोट सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, synthesis of chlorophyll, chloroplast, promote opening of stomata, promote cell division, cytokinesis, then nutrient metabolism। ये सब करने की वजह से एज नहीं बढ़ता, स्ट्रक्चरल डिमेंशिया, बराबर। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। मॉर्फोजेनेसिस एंड सेल डिफरेंशिएशन, morphogenesis and cell differentiation in tissue culture.
मॉर्फोजेनेसिस एंड सेल डिफरेंशिएशन इन टिश्यू कल्चर। सी, आप लेबोरेटरी में पेट्री प्लेट में सेल्स कल्टीवेट कर रहे हो, सेल को कल्चर कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं टिश्यू कल्चर। ये पेट्री प्लेट है, पेट्री प्लेट में आपने ये मीडिया डाला है फूड, पेट्री प्लेट में आपने ये मीडिया डाला है फूड, राइट? फूड में आपने ये सेल्स रखे, फूड पे आपने ये सेल्स रखे, सेल ने न्यूट्रिएंट एब्सॉर्ब किया, सेल ने न्यूट्रिएंट एब्सॉर्ब किया, मीडिया से फूड एब्सॉर्ब किया, तो सेल्स की ग्रोथ हो गई और हमको मेनी सेल्स मिले, isn't it? You get many cells. ये अनडिफरेंशिएटेड सेल को हमने कौन सा शब्द यूज किया था, याद है ना आपको? कैलस, राइट? अगर देखो, अगर ये अनडिफरेंशिएटेड डिवाइडिंग सेल में आपको डिफरेंशिएशन इंड्यूस करना है, मॉर्फोजेनेसिस, राइट, मॉर्फोलॉजी इनिशिएट करनी है, तो इसको ऑक्सिन is to cytokinin, right? Auxin is to cytokinin in a particular ratio प्रोवाइड किया जाएगा। ये पेट्री प्लेट में कैलस ग्रो हो रहा है, इसमें आप ऑक्सिन ज्यादा डालते हो, साइटोकाइनिन ज्यादा डालते हो, दोनों का प्रपोर्शन क्या है, उसके अनुसार इसका ग्रोथ डिसाइड होगा। ओके, सो सिंपल क्या लिख लेंगे, अगर ऑक्सिन इज टू साइटोकाइनिन 1:1 रेशो में है, अगर ऑक्सिन इज टू साइटोकाइनिन 1:1 रेशो में है, तो यहां पे कैलस फॉर्मेशन होगा। कैलस फॉर्मेशन मतलब नो डिफरेंशिएशन, सबके सब सेल एक जैसे नहीं, राइट? ये हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 में अगर आप ऑक्सिन मोर डालते हो, ध्यान दे रहे हो ना, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, ये ऑक्सिन इज टू साइटोकाइनिन, ऐसी बात कर रहा हूं, राइट? अगर ऑक्सिन इज टू साइटोकाइनिन 1:1 डाला तो हमको नो डिफरेंशिएशन मिलेगा, कैलस फॉर्मेशन, राइट? मोर ऑक्सिन लेस साइटोकाइनिन डाला, मोर ऑक्सिन लेस साइटोकाइनिन डाला तो हमको मिलेगा रूट इनिशिएशन, जिसको हमने साइंटिफिक शब्द यूज किया था राइजोजेनेसिस। इजंट इट? रूट फॉर्मेशन की प्रोसेस, रूट ये मॉर्फोलॉजी देता है, ऑर्गन है वो मॉर्फोलॉजी देता है, सो इसकी वजह से ऑर्गेनोजेनेसिस और मॉर्फोजेनेसिस रिलेटेड। ऑक्सिन और साइटोकाइनिन की रेशियो की वजह से सेल डिफरेंशिएशन, ऑर्गेनोजेनेसिस, मॉर्फोजेनेसिस हो रहा है, राइट? दिस इज व्हाट इज द थिंग। थर्ड वन, यहां पे अगर हम बोलेंगे ऑक्सिन लेस और साइटोकाइनिन मोर, राइट? हम ऐसी बात कर रहे हैं बच्चों, ये ऑक्सिन साइटोकाइनिन, ऑक्सिन का कॉलम है और ये यहाँ पे साइटोकाइनिन का कॉलम। ओके, अगर सी पे आएंगे ऑक्सिन लेस साइटोकाइनिन मोर, तो ये कंडीशन में हमको शूट डेवलपमेंट मिलेगा, शूट इनिशिएशन, जिसको हमने कौन सा शब्द यूज किया था, काउलोजेनेसिस। Cauliflower is a shoot tip, याद है? Morphogenesis are of two types, rhizogenesis root initiation, caulogenesis shoot initiation.